Qani oling. Meni qornim to'q edi. Sizlar bemalol ovuringlar. Adajon, men sizga solib beraymi? Xo'p. Ismingiz Siroj. Nima ish qilasiz? Qurilishda ishlayman. O'zi Moskvada arxitekturani bitirganman. Bu yoqda endi qurilishda ishlayman. Yaxshi. Adajon, Siroj akachi Lolani tog'asi bo'ladilar-da. Mana dugonam Lola bor-ku. Aha. Yaxshi. Ol bolam. Bu narsalardan yeb olgin. Yo'q, qornim to'q. Adajon, men mashinada o'tirib tura qolay. Sizlar gaplashib ola qolinglar. Mayli, xo'p, bora qol. Xo'p, eshitaman sizni. Xullas, go'zalga uylanmoqchiman. Qizingizni yaxshi ko'raman. Yaxshi. Yoshlarning orasida ancha farq bor ekan. Qizim erka o'sgan. Bitta oilani eplay olmaydi deb qo'rqaman. Xavotir olmang. Alohida yashaymiz. O'zim o'rgataman tushunmagan narsalarni. Nega shu yoshgacha uylanmagansiz? Bilasizmi, o'qidim, ishladim, Moskvada ham, malaka oshirdim, pul yig'dim, uy oldim. Shunaqa qilib yosh o'tib qoldi. Tushunarli. Qizim hali hayotga tayyor emas. Qo'rqyapman turmushga bergani. Tushunaman. Go'zal hali yosh bola. Lekin siz xavotir olmang. Qizingiz ko'zidan bir tomchi ham yosh oqmaydi. Chunki onam hayotda meni qiynalib katta qilganlar. Bir o'zlari. Onamni yig'lagan kunlari, onamni qiynalgan kunlari hech qachon esimdan chiqmaydi. Birovni farzandini yig'latib, dilini ortib yashamayman. Ocham qolmaydi. Men sizga va'da beraman. Mayli. O'ylab ko'rish kerak. Hozir bir nima deya olmayman. Xo'p, Uyingizdagilar bilan gaplashing. Endi o'zbekchilik. O'z to'g'ri tushunasiz. O'zi qizimni olib ketib, Amerikada o'qitmoqchi edim. Ko'nmayapti. Bilmadim negadir. O'zbekistondan hech qayerga ketmayman deydi. Pul bilan ham aldab ko'rdim. Mashina bilan ham aldab ko'rdim. Lekin bilmadim. Onamni mozori shu yerda. Hech qayerga ketmayman deb turib olgan. Mozorga ham borib keldik birga. Oyisi bilan tanishtirdi. Qizingizchi ajoyib qiz. Qani oling. Meni qornim to'q edi. Sizlar bemalol ovuringlar. Adajon, men sizga solib beraymi? Xo'p. Ismingiz Siroj. Nima ish qilasiz? Qurilishda ishlayman. O'zi Moskvada arxitekturani bitirganman. Bu yoqda endi qurilishda ishlayman. Yaxshi. Adajon, Siroj akachi Lolani tog'asi bo'ladilar-da. Mana dugonam Lola bor-ku. Aha. Yaxshi. Ol bolam. Bu narsalardan yeb olgin. Yo'q, qornim to'q. Adajon, men mashinada o'tirib tura qolay. Sizlar gaplashib ola qolinglar. Mayli, xo'p, bora qol.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस ड्रामे के न्यू एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सुल्ताना जो होती है वो किचन में काम कर रही होती है, तो ऊपर से उसे फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन देखने लग जाती है तो नाजरीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि राश्ता जो होती है वो आके कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुल्ताना कहती है मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पर क्या जो मर्ज़ी करूँ, तुम्हें इससे मतलब। तो सुल्ताना कहती है मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से हूँ। राश्ता कहती है चलो मेरे किचन से दफ़ा हो जाओ। तो सुल्ताना कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तो नाज़रीन उनके दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की गिबत करने लग जाती हैं और कहती है कि तुम ऐसे हो, वो कहती है तुम ऐसी हो। नाज़रीन इन दोनों के दरमियान मुखालफत पैदा हो जाती है। वो दोनों आपस में इतना लड़ती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो राशिदा कहती है तुम मेरी शक्ल देखो ना देखो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ पर हो, इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी वजह है। मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो आगे से सुल्ताना कहती है तुम्हें पता है तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें ज़ैन को दिखाया जाता है और राश्ता ज़ैन से कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो और तुम्हारी माँ मुझसे लड़ाइयाँ की जा रही है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आमना को दिखाया जाता है जो कि ज़ैन के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं राश्ता की बातें सुन रहा हूँ। वो कह रही है कि तुम्हारी माँ मुझसे लड़ाइयाँ की जा रही है। तो आमना आगे से कहती है कि इन दोनों के दरमियान तो ऐसा ही होते रहना है, हम अपना सर क्यों खपाएं इनके साथ। तो आगे से ज़ैन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी मेहमान है। अगर मेहमान के साथ ऐसा किया जाएगा तो हमारा क्या मकसद है कि हम अपने मेहमान की मेहमानवाजी नहीं कर सकते। तो आमना उससे कहती है कि कोई बात नहीं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें मरियम को दिखाया जाता है जो कि अपनी भाभी और भाई के पास आके बैठती है और कहती है कि मुझे शादी करनी है। उसका भाई कहता है अभी तुम्हारा मकसद क्या है। तो वो कहती है बस आप मेरी जल्द अज जल्द शादी कर दे। तो आगे से ज़ैन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचने लग जाती है और कहती है कि मैंने आपसे जो कह दिया है बस कह दिया है। उसकी भाभी उसे समझाती है, उसका भाई भी उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि आप बस मेरी असलम से शादी करवा दें। तो उसकी भाभी कहती है वो अच्छा लड़का नहीं है, हम तुम्हारी एक अच्छे लड़के से शादी करवाएंगे। उसका भाई भी कहता है। फिर उसकी भाभी कहती है कि तुम्हें उस असलम में क्या नज़र आया है। वो कहती है जो भी नज़र आया है आपको इससे मतलब। तो ज़ैन और आमना गले मिलते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं भी ऐसे ही जीना चाहती हूँ आप दोनों की तरह। तो वो उठती है और उसके पास जाती है और कहती है कि ऐसे ही आप दोनों के दरमियान प्यार रहेगा। तो उसका भाई कहता है कि हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें सिकंदर को दिखाया जाता है और ज़ैन और रेहान को दिखाया जाता है। सिकंदर रेहान से कहता है कि यार देखो हम एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो वो फ़ोन पर देखता है और कहता है ये देखो इनकी यारी। वो हंसने लग जाता है। तो आगे से रेहान कहता है कि यार हम दोनों की यारी के दरमियान तुम्हारी बीवी इख्तिलाफ़ात डाल रही है। तो वो आगे से कहता है यार तुम ऐसा नहीं सोचो, वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है और साफ़ है, ऊपर से ही रूठी नज़र आती है। तुम ऐसा करो कि अपनी भाभी से माफ़ी मांग लो। तो वो कहता है मैं माफ़ी किस वजह से मांगूँ, मैंने कोई नुकसान किया है। वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो सिकंदर वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है कि यार तुम अपनी भाभी से माफ़ी मांग लो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें फिर ज़ैन और असलम को दिखाया जाता है। असलम आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। तो वो फ़ोन पर रब्ता किसी से करता है और कहता है कि असलम के बारे में मुझे अच्छी और सब कुछ बता दो, मैं अपनी बहन का इसके साथ रिश्ता करना चाहता हूँ। तो उसकी सारी डिटेल्स अपने फ़ोन पर किसी से लेता है और कहता है कि मुझे असलम की सारी डिटेल्स चाहिए। असलम कहता है कि आप मेरी डिटेल्स किसी और से मत लें, मैं खुद अपनी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। मैं एक शरीफ और अच्छे ख़ानदान का लड़का हूँ, मैं आपकी बहन को बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा। तो ज़ैन आगे से कहता है नहीं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके पास जाता है और उसे उठाकर अपने बाप के घर लेके जाता है। ज़ैन कहता है कि चलो मुझे अपने बाप के घर लेके जाओ। तो वो उसे वहाँ से लेकर जाता है क्योंकि ज़ैन अपाहिज होता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि असलम ज़ैन को अपने बाप के घर लेके जाता है। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर सीन बदलता है और हमें राशिदा, सुल्ताना और अबीहा को दिखाया जाता है।
अबीहा प्रेग्नेंट होती है उसका चेकअप करवाने के लिए वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं। उसे हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उसका चेकअप होता है तो राशिदा व्हील चेयर लेकर उस कमरे में जाती है। सुल्ताना अबीहा को लेकर कैबिन में चली जाती है। उसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो आती है और फ़ोन तो राशिदा फ़ोन पर किसी से बात करती है और कहती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें फिर एक दफ़ा असलम और जैन को दिखाया जाता है जो कि अपने बाप के पास आता है और कहता है बाबा आप मेरे बारे में इसे आगाह करें। तो उसका बाप कहता है कि मेरा बेटा बहुत ही शरीफ और मासूम लड़का है। तो वो हंसने लग जाता है। तो नाज़रीन जैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस दौर में हर कोई मासूम और शरीफ ही होता है, आप इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैंने अपनी बहन का इसके साथ रिश्ता करना है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर सीन बदलता है और हमें अबीहा और सुल्ताना को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से चेकअप करवा के बाहर निकलती हैं और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस ड्रामे के न्यू एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सुल्ताना जो होती है वो किचन में काम कर रही होती है तो ऊपर से उसे फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन देखने लग जाती है तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि राशिदा जो होती है वो आके कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुल्ताना कहती है मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पर क्या जो मर्ज़ी करूँ, तुम्हें इससे मतलब। तो सुल्ताना कहती है मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से हूँ। राशिदा कहती है चलो मेरे किचन से दफ़ा हो जाओ। तो सुल्ताना कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तो नाज़रीन उनके दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की गिबत करने लग जाती हैं और कहती है कि तुम ऐसे हो, वो कहती है तुम ऐसी हो। नाज़रीन इन दोनों के दरमियान मुखालफत पैदा हो जाती है। वो दोनों आपस में इतना लड़ती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो राशिदा कहती है तुम मेरी शक्ल देखो ना देखो इससे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ पर हो इसकी बहुत ही बड़ी वजह है। मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो आगे से सुल्ताना कहती है तुम्हें पता है तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें जैन को दिखाया जाता है और राशिदा जैन से कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो और तुम्हारी माँ मुझसे लड़ाइयाँ की जा रही है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें आमना को दिखाया जाता है जो कि जैन के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं राशिदा की बातें सुन रहा हूँ। वो कह रही है कि तुम्हारी माँ मुझसे लड़ाइयाँ की जा रही है। तो आमना आगे से कहती है कि इन दोनों के दरमियान तो ऐसा ही होते रहना है, हम अपना सर क्यों खपाएं इनके साथ। तो आगे से जैन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी मेहमान है, अगर मेहमान के साथ ऐसा किया जाएगा तो हमारा क्या मकसद है कि हम अपने मेहमान की मेहमानवाजी नहीं कर सकते। तो आमना उससे कहती है कि कोई बात नहीं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें मरियम को दिखाया जाता है जो कि अपनी भाभी और भाई के पास आके बैठती है और कहती है कि मुझे शादी करनी है। उसका भाई कहता है अभी तुम्हारा मकसद क्या है। तो वो कहती है बस आप मेरी जल्द अज जल्द शादी कर दे। तो आगे से जैन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचने लग जाती है और कहती है कि मैंने आपसे जो कह दिया है बस कह दिया है। उसकी भाभी उसे समझाती है, उसका भाई भी उसे समझाता है लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि आप बस मेरी असलम से शादी करवा दें। तो उसकी भाभी कहती है वो अच्छा लड़का नहीं है, हम तुम्हारी एक अच्छे लड़के से शादी करवाएंगे। उसका भाई भी कहता है। फिर उसकी भाभी कहती है कि तुम्हें उस असलम में क्या नज़र आया है। वो कहती है जो भी नज़र आया है आपको इससे मतलब। तो जैन और आमना गले मिलते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं भी ऐसे ही जीना चाहती हूँ आप दोनों की तरह। तो वो उठती है और उसके पास जाती है और कहती है कि ऐसे ही आप दोनों के दरमियान प्यार रहेगा। तो उसका भाई कहता है कि हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें सिकंदर को दिखाया जाता है और जैन और रेहान को दिखाया जाता है। सिकंदर रेहान से कहता है कि यार देखो हम एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो वो फ़ोन पर देखता है और कहता है ये देखो इनकी यारी। वो हंसने लग जाता है। तो आगे से रेहान कहता है कि यार हम दोनों की यारी के दरमियान तुम्हारी बीवी इख्तिलाफात डाल रही है। तो वो आगे से कहता है यार तुम ऐसा नहीं सोचो, वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है और साफ़ है, ऊपर से ही रूठी नज़र आती है। तुम ऐसा करो कि अपनी भाभी से माफ़ी मांग लो। तो वो कहता है मैं माफ़ी किस वजह से मांगूँ, मैंने कोई नुकसान किया है। वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो सिकंदर वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है कि यार तुम
तुम अपनी भाभी से माफ़ी मांग लो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें फिर ज़ैन और असलम को दिखाया जाता है। असलम आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। तो वो फ़ोन पर रब्ता किसी से करता है और कहता है कि असलम के बारे में मुझे अच्छी और सब कुछ बता दो, मैं अपनी बहन का इसके साथ रिश्ता करना चाहता हूँ। तो वो उसकी सारी डिटेल्स अपने फ़ोन पर किसी से लेता है और कहता है कि मुझे असलम की सारी डिटेल्स चाहिए। असलम कहता है कि आप मेरी डिटेल्स किसी और से मत लें, मैं खुद अपनी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। मैं एक शरीफ और अच्छे ख़ानदान का लड़का हूँ, मैं आपकी बहन को बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा। तो ज़ैन आगे से कहता है नहीं। नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके पास जाता है और उसे उठाकर अपने बाप के घर लेके जाता है। ज़ैन कहता है कि चलो मुझे अपने बाप के घर लेके जाओ। तो वो उसे वहाँ से लेकर जाता है क्योंकि ज़ैन अपाहिज होता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि असलम ज़ैन को अपने बाप के घर लेके जाता है। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर सीन बदलता है और हमें राशिदा, सुल्ताना और अबीहा को दिखाया जाता है। अबीहा प्रेग्नेंट होती है, उसका चेकअप करवाने के लिए वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं। उसे हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उसका चेकअप होता है तो राशिदा व्हीलचेयर लेकर उस कमरे में जाती है। सुल्ताना अबीहा को लेकर कैबिन में चली जाती है। उसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो आती है और राशिदा फ़ोन पर किसी से बात करती है और कहती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें फिर एक दफ़ा असलम और ज़ैन को दिखाया जाता है जो कि अपने बाप के पास आता है और कहता है बाबा आप मेरे बारे में इसे आगाह करें। तो उसका बाप कहता है कि मेरा बेटा बहुत ही शरीफ और मासूम लड़का है। तो वो हंसने लग जाता है। तो नाज़रीन ज़ैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस दौर में हर कोई मासूम और शरीफ ही होता है, आप इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैंने अपनी बहन का इसके साथ रिश्ता करना है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर सीन बदलता है और हमें अबीहा और सुल्ताना को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से चेकअप करवा के बाहर निकलती हैं और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।